Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q1 FY24 earnings conference call of Servotech Power Systems Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Raman Bhatia, the Managing Director and Founder of Servotech. Thank you, and over to you, sir. Thank you, ma'am. Good evening, all of you, and welcome to Servotech Power Systems Limited for first conference call. I am delighted to have the opportunity to address all of you today and share some exciting updates about our company and the remarkable growth prospects that lie ahead. Servotech Power Systems Limited is a leading provider of smart power solutions in India. We offer a wide range of products and services, including EV chargers, solar products, and power and backup solutions. We are committed to providing our customers with innovative and reliable products that help them to save energy and money. We have a strong track record of growth, and we are well positioned to capitalize on the growing demand for EV chargers and solar products. At Servotech, we believe that sustainable and green energy holds the key to unlocking progress, prosperity, and a better tomorrow, which is underlying our motto of produce green and live green. With a steadfast commitment to innovation and environmental stewardship, we have positioned ourselves at the forefront of the sustainable, clean, and green energy revolution. Our vision extends beyond mere profit making. We strive to create a positive impact on our planet, society, and the bottom line of our investors. We have a strong product portfolio, a growing customer base, and a committed team. We are not only driving the transition towards a low carbon economy, but we are also providing cutting edge solutions for energy storage, grid optimization, and electric mobility. Our dedication to innovation and a customer centricity has allowed us to forge strong partnerships and capture significant market share across various sectors. We command a sizable market share in the EV charging space and successfully deployed more than 3,000 EV chargers across the nation. As we set forth on an accelerating path towards limitless expansion, we are experiencing an extraordinary shift in the realm of sustainable and environmentally friendly energy. The rise of electric vehicles, EVs, and the increasing demand of eco-conscious power solutions have bestowed upon us unparalleled opportunities within our industry. Positioned at the vanguard of this revolution, our journey towards success is poised to reach unprecedented heights in the forthcoming quarter and beyond. In conclusion, the future of Servotech is promising. With the convergence of groundbreaking technologies, our commitment to innovation, strategic partnerships, and a steadfast focus on sustainability, we are well positioned to seize the abundant growth opportunities that lie ahead. We are confident that we can continue to grow our business and deliver value to our stakeholders. Thank you, everyone. I will now transfer the call to Mr. Vipin Kochhar, our Finance Controller, who will provide an overview of our financial performance for the first quarter of fiscal year 2024. Over to Mr. Vipin. Thank you, sir. Good evening, everyone. Thank you for joining us today. Servotech delivered strong growth for the first quarter as we executed on our strategy to strengthen our presence across India. So we will move to the financial update of Q1. Our total consolidated revenue increased by 148.9% to 79.81 crores in Q1 FY24 from 32.07 crores in Q1 FY23. This impressive increase can be attributable to the strong demand for our EV products
driven by the widespread adoption of electric vehicles and the government's continued emphasis on establishing a robust charging infrastructure network. Additionally, our solar product range continue to exhibit healthy demand due to its functional design, durability, and user-friendly features. Our EBITDA increased by 415.3% from 1.4 crores in the Q1 FY23 to 7.1 crores in Q1 FY24. Margins improved from 4.3% in Q1 FY23 to 8.9% in Q1 FY24 on account of increasing scale of operations and higher value-added products. PAT stood at 4.1 crores in Q1 FY24 compared to 36 lakhs in Q1 FY23. Margins improved from 1.1 in Q1 FY23 to 5.1 in Q1 FY24. This is a snapshot of the Q1 results vis-a-vis comparison. Thank you for your time, and we are happy to answer any questions you may have. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star, then 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star, then 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We take the first question from the line of Amit Ravani, an individual investor. Please go ahead. Mr. Amit Ravani, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. As there seems no response, we proceed to the next question from the line of Ashok Agarwal. Please go ahead. The excellent set of numbers. My question is that in your presentation, you have predicted a 100% growth in the turnover in the current financial years. So in that context, I want to know what is the order book we have? Yes. आपका सवाल पूरा हो गया? यही आपका सवाल है? हाँ, यही मेरा सवाल है जी। हाँ सर, हम आपको बताना चाहते हैं कंपनी 4 या 5 वर्टिकल में काम करती है। पहले आपको ये समझना होगा कंपनी का मॉडल। पहला जो है वो है हम लोग टेंडरिंग बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा हमारा जो बिजनेस है वो है चैनल सेल्स। तीसरा है ओईएम और चौथा है जो हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स करते हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स के थ्रू भी करते हैं, करेक्ट। तो डिजिटल ई कॉमर्स और जो हमारा चैनल सेल्स है उसका एक फिक्स बिजनेस है जो रूटीन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस है। तो अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 60 से 70 करोड़ का ऑर्डर बुक वो ऑलरेडी इन पाइपलाइन है। दैट इज नंबर 1। इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो अगले क्वार्टर के लिए 90 करोड़ के ऑर्डर इन पाइपलाइन है जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट बिड किए हुए हैं। तो इन टोटल आप देख सकते हैं, और जिसमें हमारा रेशो अगर हम बात करते हैं 20% भी बात करते हैं तो इट इज अराउंड 500 to 600 करोड़ हो सकता है। तो 2000 करोड़ के जो आपने प्रोजेक्ट बिड किए हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? मतलब आर दे सिंपल सप्लाई ऑफ ईवी चार्जर्स या कुछ और? सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन सिस्टम हमें कंप्लीट करके देना होता है। हम सीपीओ ऑपरेटर नहीं है, यानी कि हमारा इंस्टॉल करके उससे रेवेन्यू कमाने का कोई इरादा नहीं है। हम कैपेक्स बेस्ड मॉडल में काम करते हैं, यानी कि एज अ मैन्युफैक्चरर हम मटेरियल दे देंगे, उसको इंस्टॉल करके देंगे, कमीशनिंग करके देंगे, उसकी मेंटेनेंस कर देंगे, बट हम पैसा साथ साथ ले लेंगे। दैट इज बिजनेस मॉडल। ओके, तो लार्जली दिस इज ईवी चार्जर्स मींस 2000 करोड़ प्रोजेक्ट नहीं है, सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट हैं जो हम कर रहे हैं। अगर आप पिछले दिनों की कुछ न्यूज़ देखेंगे तो यूपी नेटा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, एंड प्लस कुछ और ऑर्डर हैं जिसकी न्यूज़ हम अभी और पब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक सोलर बेस्ड हिंदुस्तान का पहला चार्जर ईवी चार्जर स्टेशन बनाने जा रहे हैं साउथ दिल्ली में।
वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसकी न्यूज़ अभी कुछ टाइम पहले भी हमने पब्लिश की थी, वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो ये क्या रेशियो है, जैसे 2000 करोड़ में सोलर सिस्टम्स का क्या रेशियो होगा? और टेंडर बिडिंग की अगर आप बात करते हैं, टेंडर बिड की बात कर रहे हैं ना, 2000 करोड़। हाँ, टेंडर बिड के अंदर जो बात करें तो मेजर पार्ट जो है वो ईवी चार्जर का है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं हमारे बिजनेस का जो हमें मिलेगा और जो हम अपनी एक जिसको कह सकते हैं फोरकास्टिंग है, वो मोटा मोटी 60-65% के आसपास ईवी चार्जर रहेगा और अराउंड 35% के आसपास सोलर रहेगा। अच्छा जी, तो ये भी कुछ मतलब ये यूनिफॉर्मली एग्जीक्यूट होंगे Q2, Q3, Q4 में, या इसमें कुछ लंपिंग होता है? मतलब कोई भी Q4 तक जाते जाते ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाता है? मैं आपको जवाब देता हूँ उसका भी। आप अगर हमारी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखेंगे, जो हमने प्रेजेंटेशन रिलीज की है NSE गई, उसमें हमने बड़ा क्लियर दिया है Q1 की जो नेट सेल है, उस पेज पे अगर आप प्रेजेंटेशन में दोबारा जाएंगे तो हमने वहाँ पर मेंशन किया है कि हमारा जो Q1 होता है वो टोटल टर्नओवर का 12% होता है एज पर द लास्ट 5 years का पैटर्न, करेक्ट? ओके ओके। और जो सेकंड क्वार्टर होता है वो 16% के आसपास होता है ऑफ द टोटल टर्नओवर। थर्ड क्वार्टर जो होता है वो 30% होता है और फोर्थ क्वार्टर जो होता है 40 से 45% के आसपास होता है। हाँ, दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व लास्ट जो Q4 था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, सो दैट वाज अ very large sale booked there actually. So I was wondering whether sale has really dropped in Q1 or ये 10 साल का यही ट्रैक है, लेकिन 10 साल की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए 5.5 साल हुए हैं, तो इसलिए हम 5 साल के बेस पे हमने डाटा बनाया है और वही डाटा हमने पब्लिश भी किया है। आप अगर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये हमने स्लाइड पे दिया है, हमारी स्लाइड नंबर 22 पे है ये। ओके ओके, आई विल सी इट केयरफुली अगेन। हाँ प्लीज। ओके, थैंक यू सर। मैं फिर से आई विल जॉइन द क्यू अगेन। जी जी, प्लीज सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Vivek Singh, an individual investor. Please go ahead. रमन सर नमस्कार, विवेक बोल रहा हूँ। हेलो जी नमस्कार। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। ये एक, आप जो चार्जिंग है या सोलर है, चार्जिंग में खासकर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, जैसे ABB है या हिताची है या ये है, तो हमारा क्या कंपनी, मतलब मैंने आपका वीडियो देखा है सर्वोटेक का, तो उसमें ये था कि आपने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए IIT जम्मू से शायद टाई अप किया था, तो ये हमारा कुछ टाई अप है किसी फॉरेन कंपनी के साथ में? एंड दूसरा, अपना जो कैपेसिटी है अभी, उसको हम कुछ एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेक्स पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपने, जो चार्जिंग डिवीजन है, सोलर डिवीजन है, लाइटिंग डिवीजन है। सर आपका सवाल भी समझ गया, उसका जवाब भी डिमांड है कि आई थिंक हमारी कंपनी उसका हार्डली 1 या 2% या 5% कर पाएगी, ऐसा। मैं आपको जवाब देता हूँ सर। हेलो जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से हमारी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखेंगे तो आपको उसमें भी वैसा ही जवाब मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले जवाब देता हूँ पहले सवाल का, ठीक है? आपने ये पूछा कि हमारा कोई फॉरेन कोलैबोरेशन है क्या, राइट? जी जी। तो मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से समझेंगे या न्यूज़ को उठाएंगे तो गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के लिए भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए भी, जिसको वो कहते हैं FAME, FAME, राइट? FAME जो होता है, हेलो जी जी जी, ऐसा जो FAME है, एक सेकंड सर, आपको सर एक सेकंड, ताकि मैं आपकी, हाँ, FAME का जो है उसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें उनकी पहली शर्त ये है कि आपका प्रोडक्ट इंडिजिनाइज होना चाहिए, हिंदुस्तान में बनना चाहिए और आपकी टेक्नोलॉजी इंडियन होनी चाहिए। हेलो, राइट सर जी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कंपनी कुछ मुझे फॉरेन की कंपनियां बताई, वो इन बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हो जाती है अगर वो इंपोर्ट कर रही हैं या वो अगर इसको बाहर से लेके आ रही हैं, तो आपको इंडिजिनाइज करना होगा। तो पहले आपके लिए कंपटीशन काफी मर जाता है, राइट? जी जी।
दूसरा फायदा आपको ये होता है कि जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो हमें जो हमने मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर में किया या हमने जो यूवीसी लाइट्स में किया आईआईटी जम्मू वगैरह के साथ मिलके या डीआरडीओ के साथ मिलके, राइट, तो इन सब के साथ काम करने से हमने अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को इतना एनहेंस कर लिया कि आज हमारे पास इंटरनली इतनी स्ट्रांग टीम है कि हम लोग ये सब कुछ इंडिया में इंडिजिनाइज कर चुके हैं। ये है फेज 1, ये पहली बात है, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से हमारी स्लाइड नंबर 20 देखें जो हमने पब्लिश की है, उस पर हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब बात की है तो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जितने पार्ट्स इस चार्जर को बनाने में लगते हैं वो सब भी हम इंडिजिनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2,25,000 स्क्वायर फीट एरिया में प्रोडक्शन लाइन करने जा रहे हैं। हम 2 नई फैक्ट्रीज हमारी आने जा रही है। अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड नंबर 38.5 पे, तो हमने वहां पर नए यूनिट की पिक्चर भी दी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने दी है, मैं देख जी। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बहुत तेजी से और हमारा एक टारगेट है कि अक्टूबर से पहले पहले वो नई फैक्ट्री जो है वो ऑपरेशनल हो जाए। ठीक है। दूसरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या मतलब हमारी सेकेंड जनरेशन अभी बिजनेस में आ रही है कि क्या व्यू है इस पे, क्या आपका विचार है उस पे सर, थोड़ा आप बता। तो इसके अंदर आपको मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब थोड़ा सा अलग हो सकता है शायद दुनिया से, लेकिन मैं फिर भी देना चाहूँगा। सर, अगर कोई फैमिली से आएगा तो वो मेरिट के बेस पे आ सकता है, उसको गद्दी नहीं मिलेगी कि मैंने इस बिजनेस को बनाया तो उसको मिल जाए। इस कंपनी को अगले 3 साल में इस तरीके से हम लोग प्रोफेशनल्स के हाथ में देते चले जा रहे हैं कि ये कंपनी में रमन भाटिया या फैमिली इररिलेवेंट हो जाएगी। हम हो या ना हो, ये अपनी एक स्पीड से ग्रो करती रहे। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये कंपनी को, अगर मैं अपनी थॉट प्रोसेस से या विजन से कहीं तक ले आया हूँ या मैनेजमेंट ले आई है, तो हमारे यहाँ से हटने के बाद हो सकता है कि इसका विजन और वो सब कुछ ड्रॉप कर जाए। तो हम अभी लीडरशिप टीम और प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम एक प्रोसेस में डाल सकें, एक मैकेनिज्म में बना पाएं, ताकि हमारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कंपनी तेजी से ग्रो होती चले जाए और हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनीज में एक दिन आ पाए। सारी छोटी कंपनियां ऐसी शुरू हुई हैं, लेकिन जिसने भी ऐसा विजन रखा है शायद वही बड़ी कंपनियां बनी हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन आपका रहना एज ए चेयरमैन या जिस भी पोजीशन में रहें एज ए फाउंडर, तो वो आपका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल की कदर करता हूँ, चले जाते हैं। नहीं, आपकी भावना की कदर करता हूँ सर, लेकिन जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो सर लीडरशिप 2 तरीके से दी जाती है, एक एम्प्लॉयमेंट से और एक ऑनरशिप से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज हमारी कंपनी के मोर देन 70% लोगों को ईसोप भी दिए गए हैं। सभी को मालिकाना हक दिए जा रहे हैं ताकि इस कंपनी के अंदर बहुत सारे मालिक पैदा हो पाएं और सब अपनी कंपनी समझ के इस कंपनी को आगे ले जाएं। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगी, ऐसी सोच के साथ हम आए हैं। ये मेरी वजह से नहीं चलेगी और ना ही मेरे जाने की वजह से बंद होगी। ये लगातार ग्रो करेगी। इसके लिए इस तरीके की सेकंड लाइन कमांड बनाई जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फैमिली से भी आएगा तो कोई भी, तो उसको भी तैयार किया जा रहा है ताकि वो भी मेरे थॉट था कि जिस हिसाब से आपने यहाँ तक लेके आया है इतने सारे डिफरेंट बिजनेसेस से, और आपने एक पूरी थिंकिंग ही बदल दी है कि सब कुछ इंडिया में बन सकता है, बस एक सोच होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। और जिस लेवल पे आज कंपनी है वो मतलब बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेसेस में, इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं सिर्फ इतना इंश्योर करूंगा सर कि जो मैं सोच रहा हूं उस सोच को मैं स्प्रेड कर पाऊंगा इस कंपनी के एक एक एम्प्लॉय में और एक एक व्यक्ति में। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि जब प्रमोटर कोई बात करता है तो बिकॉज ये रिकॉर्डेड है और ये एनएससी पे भी जानी है, तो हमें बड़े शब्दों को चुन के बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक शब्द मैं बोल रहा हूं आपके सामने। 2 सोच है मेरे पास जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। पहली सोच ये है कि 2026 तक, यानी कि अगले 3 सालों में हम ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे कि सर्वोटेक कंपनी में एम्प्लॉय नौकरी ढूंढने के लिए सिफारिश लगाएगा कि मुझे इस कंपनी में काम करना है। इसका मतलब एक ऐसा कल्चर डेवलप कर देंगे, वैल्यूज और कल्चर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2,
ये अभी मैंने आईकैट की एक कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। हम एप्पल के लेवल की क्वालिटी को चाइना के एफओबी प्राइस पे मार्केट को देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अगले 2 सालों में ये मुकाम भी हासिल करेंगे और जरूर करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you. The next question is from the line of Shikhar Mundra from Vivog Commercial. Please go ahead. अरे सर, तो भी समझना, ईवी चार्जर का भी मार्केट टोटल कितना बड़ा है इंडिया में? सर, जो अभी मार्केट का साइज है, राइट, उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है सर, और एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की कहानी होती है। तो जितना बड़ा मार्केट है उसको कैटर करने के लिए जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से अभी मार्केट बड़ा है। लेकिन जो साइज इसका सोचा जा रहा है या जो साइज की कैलकुलेशन की जा रही है, मैं अपनी स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर रहा हूँ और स्टार का निशान लगा रहा हूँ साथ में, क्योंकि मैं उसके लिए परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। फिर भी जो कोट कर रहा हूँ वो मार्केट में और गूगल पे जो डाटा है अवेलेबल, उसकी छोटी मोटी कैलकुलेशन करके जो मार्केट देख पा रहा हूँ वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट है अगले 6-7 सालों में। ओके ओके। और हम लोग अगले 6-7 सालों में अगर 5 से 7 हजार करोड़ की टर्नओवर भी कर जाते हैं तो सर हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, मतलब हमने कुछ भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको हम ये कहें कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसके बावजूद एज अ सर्वोटेक की अगर हम बात करें तो वो आज से 20 गुना बड़ी जरूर हो जाएगी। अच्छा, नाइस नाइस। और सो ये हमने प्रेजेंटेशन में लिखा है 1200 करोड़, तो ये 6 लाख ईवी चार्जर्स के लिए लिखा है क्या? और पूरा जो 6 लाख ईवी चार्जर्स का 1200 करोड़ का पोटेंशियल होगा? 1200 करोड़ की अगर हम बात करें तो 6 लाख चार्जर नहीं हो सकते सर। 1200 करोड़ रुपए में जो चार्जर आएंगे सर, 100 करोड़ के अंदर लगभग जो चार्जर बनते हैं, जो साइज अभी हम बात कर रहे हैं वो लगभग बनते हैं सर 1000 चार्जर। तो अगर हम 1200 करोड़ की बात कर रहे हैं तो वो 12,000 चार्जर हो गए सर। अच्छा, ओके ओके। सो हमारा ये जो नया प्लांट है दैट विल बी 6 लाख ईवी चार्जर्स। जी, इसके अंदर सारे चार्जर मिला के हैं, उसमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। अगर उस तरीके से देखेंगे, आप दोनों की कैपेसिटी को टोटल करेंगे तो चार्जर की क्वांटिटीज काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। तब वो 12,000 नहीं रहेगी, तब वो क्वांटिटीज करीब करीब 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक चली जाएगी। मतलब हम करीब 4 से 5 हज़ार चार्जर इन टोटल बनाना चाहते हैं, जिसमें AC चार्जर्स भी हैं जो आपको गाड़ियों के साथ घर के लिए मिलती है। अच्छा, तो उनकी वैल्यू कम है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो क्वांटिटीज में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, ओके। तो अभी एज ऑफ नाउ अपना जो 283 करोड़ का सेल्स हुआ लास्ट ईयर, तो उसका क्या ब्रेकअप है? उसका भी ब्रेकअप हम लोगों ने, मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन में लास्ट में डाला था। अगर आप लास्ट प्रेजेंटेशन अगर एक बार देख लें तो उसमें हमने ब्रेकअप दिया है। बट अगर हम चार्जर की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका कोई 55% है, 55% के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा हमारी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। मेरी बात को प्लीज कोट ना किया जाए क्योंकि मेरे सामने प्रेजेंटेशन नहीं है, बट मेरा मानना है कि उसका ठीक डाटा हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। ओके ओके। तो ओके, अभी जो ऑर्डर्स इन हैंड है 2000, तो अभी ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं अपने? सर 80 करोड़ हम कर चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कोट किया है, 80 हम कर चुके हैं। 60-70 करोड़ का वो बिजनेस है जिसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना होता। उसके लिए एक पूरी एक चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास ऑल इंडिया। अभी हमारे पास करीब 38 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 38, जो हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर से पहले पहले 200 प्लस कर दें। एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 10 से 15 रिटेलर होते हैं। ओके ओके। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो करीब हमारे पास अभी 600 के आसपास रिटेलर्स हैं। अच्छा। और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में रिटेलर्स आ जाएंगे, राइट। तो अभी इतने लोगों से हम करीब करीब 8 से 10 करोड़ महीने की सेल कर रहे हैं, जिसका मतलब है 60-70 करोड़ वो हो गया। 80 हम कर चुके हैं और करीब 90 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड है। तो अगर इन तीनों को ही टोटल करता हूं तो हम लास्ट ईयर की टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, और लगभग 2000 प्लस करोड़ के टेंडर्स हमने बिड किए हुए हैं, जिसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन 15 से 20% देख रहे हैं, यानी कि 500 से 600 करोड़। ओके ओके। सो अभी इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू ऑफ 90 to 110% ग्रोथ, मतलब लगभग डबल करने का सोच रहे हैं रेवेन्यू। तो लास्ट ईयर 283 करोड़ कर पाएंगे
इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ राइट, लेकिन हम कोशिश तो हमारी ऐसी है जो हम पिछले 3 साल से कोशिश करते आ रहे हैं, तो उसको अचीव भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो अगर समझ लीजिए आपने 550 से 600 करोड़ का जो अपना टारगेट है, उसमें अपना ब्रेकअप क्या होगा सेल्स का? करीब करीब 65% के आसपास जो होगा वो चार्जेस होंगे सर। चार्जेस होंगे और रेस्ट सोलर सोलर होगा। ओके जी। एंड लिथियम बैटरीज? हाँ वो भी सर ऐसा है ना, देखो लिथियम बैटरी के हम वी आर नॉट अ ट्रेडर कि मैं लिथियम बैटरी बना के सर बैटरी बेचूंगा। बैटरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोलर। अच्छा, सोलर का ही पार्ट है। ओके। हाँ, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो वो होता है ऑफ ग्रिड सोलर, ऑन ग्रिड सोलर। ऑफ ग्रिड का मतलब है उसमें बैकअप होगा, तो बैकअप होगा तो उसका पार्ट बन जाता है, तो उसका अलग से सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन तब होता है जब मैं अगर सिर्फ बैटरी बेच रहा हूँ तो तब मैं कहूँगा सिर्फ बैटरी बेच रहा हूँ, वो हमारा काम नहीं है। बिकॉज हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है अपने प्रोजेक्ट्स में जो कंजम्पशन है उसके लिए। अभी हम उसकी रिटेल मार्केटिंग के लिए नहीं आ रहे। अच्छा हाँ। अभी हम इस साल में इतनी प्रोडक्शन कर लें कि हम अपनी ही कंजम्पशन पूरी कर लें, तो हमें लगता है कि हम 8-10% उसी में बना लेंगे प्रॉफिट, जो हम किसी और को दे रहे हैं बैटरी के लिए। ओके ओके, गॉट इट। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। Thank you. The next question is from the line of Karthik Bhatt, an individual investor. Please go ahead. Mr. Bhatt, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. As there's no response. Hello, yeah, am I audible? Yes, you are, sir. You may please go ahead now. या सो आपने ये 2000 करोड़ टेंडर की बात की, तो इसमें व्हाट इज द क्राइटेरिया? इज इट ओनली प्राइस और इज इट आल्सो टेक्निकल नो हाउ एंड रिलेशनशिप एंड इज इट ओनली प्राइस? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। मैं सर आपका सवाल और आपकी आवाज समझ नहीं पाया, अगर आप रिपीट कर दें तो मैं दोबारा सुनना आपने चाहूँगा। बताया कि 2000 करोड़ टेंडर का हम लोग बिड कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ प्राइस मैटर करता है या टेक्निकल नो हाउ और कितना एक्सपर्टीज है कंपनी का वो भी मैटर करता है, या किस बेसिस पे डिसाइड होगा? सर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं हाँ। जो मेरे को लगता है सर मैं पब्लिकली स्ट्रेटेजिकली डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर, ये मेरी लिमिटेशन है। बट विश्वास करें कि सिर्फ प्राइस से काम नहीं चलता, और अगर आप कहें प्राइस से तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि जितने भी टेंडर आज से पहले पिछले 3 साल में भी हमने लिए हैं, राइट, उसमें अगर हम L1 रहे हैं तो L1 और L2 के बीच में प्राइस डिफरेंस वाज लेस देन 3 और 4%। इट मीन्स हमने प्राइस गिरा के ऑर्डर नहीं लिया। ओके ओके, गॉट इट। और सर आई थिंक करेंटली हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ 25% रहा है ओवरऑल चार्जेस में, तो व्हाट इज योर आउटलुक? मतलब आप क्या इसमें कौन से अदर लिस्टेड प्लेयर्स हैं और हमारा क्या कॉम्पिटिटिव एज है उनके मुकाबले, या एंट्री बैरियर क्या है कॉम्पिटिशन के मुकाबले? एंट्री बैरियर सबसे पहले मैं बता दूंगा सर, एक तो पहला है कि आप इंडिजिनाइज करना है आपको, जो मैंने बात शायद आपने सुना हो, इससे पहले भी एक और साहब ने ये सवाल पूछा था, तो इंडिजिनाइज करना है। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि 25% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है, बाकी 75%। सर मैं बताता हूँ सर, 25% जो हमारा है वो इसलिए है क्योंकि जितने भी प्लेयर्स मार्केट में आए हैं वो प्राइवेट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, राइट। तो जो प्राइवेट हैं वो भी कहीं काम कर रहे हैं। किसी ने होटल्स में लगा दिया, किसी ने प्राइवेटली छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके लगा दिया जम पे, या किसी ने किसी रेस्टोरेंट में लगा दिए, ढाबे में लगा दिए। तो अगर आप एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी देखते हैं तो जो क्वांटिटीज बनती हैं, हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट कर लिए 150-200 करोड़ के पिछले साल में, तो हमारी क्वांटिटी उसको सरपास कर गई उन सबको, राइट। ओके ओके। लेकिन हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पे और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट हिंदुस्तान की पहली 2-3 कंपनियों में आने का ही है, इससे कम का हम सोच नहीं रहे हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम तैयारी कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक एक कंपोनेंट इन हाउस बनना शुरू हो जाए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल जो पकड़ है, क्योंकि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना बड़ा आसान नहीं है। हमारा अगले 1 साल में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, इट इज मोर देन 300 करोड़। ओके। और आई थिंक हम कोई 35-40 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके सर, कोई ओके, गॉट इट।
जी थैंक यू। इसमें कोई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऐसा कुछ है सर, मतलब टॉप 5 क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है अभी करंटली हमको? क्लाइंट वाइज रेवेन्यू सर अभी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कंपटीशन होता है। अभी क्लाइंट डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, वो हमें नुकसान कर जाएगा, और अगर आप मेरे इन्वेस्टर हैं तो आपको भी नुकसान कर जाएगा। और सर दूसरी चीज़, आपने एनजी मोटर्स और तो एनी कंपनी टू गेट थ्रू टू, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग द डिस्कशन एंड देन क्लोजिंग इट, कितना समय लग जाता है? यदि आपने आई थिंक टाटा मोटर्स का जिक्र किया है, तो ऐसे कितना समय लग जाता है, मतलब टू 1 साल लग जाता है सर। इसके अंदर सबसे पहले ARI के सर्टिफिकेशन कराना होता है आपको। उसमें वो एक एक कंपोनेंट जो आप इसमें यूज कर रहे हैं उस कंपोनेंट को वेरीफाई करते हैं, और इवन उस कंपोनेंट के मैन्युफैक्चर की भी फैक्ट्री विजिट करते हैं, उसको भी वेरीफाई करते हैं। ओके राइट। और सबको करने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट टाइप टेस्ट होता है, और सारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, देन कम्युनिकेशन टेस्ट होते हैं। इस सब के अंदर स्टैंडर्ड टाइम जो है उनका वो 6 से 7 महीने सिर्फ टेस्टिंग का, सैंपल सबमिशन के बाद। तो 1 साल लग जाता है मिनिमम किसी भी के साथ कंफर्म होने के बाद। और जब आप कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद वो 6 महीने लेते हैं इस बात के लिए कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। ओके करेक्ट। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो टाटा के साथ हम हो चुके हैं, और कुछ अच्छी न्यूज़ आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट एक आध हफ्ते में कुछ सुनने को मिले। हम उस पर काम कर रहे हैं। ओके श्योर। एंड आप अपने 4-5 बिजनेसेस बताए, तो इन 4-5 बिजनेसेस का ग्रोथ आउटलुक आप बता सकते हो क्या ओवर द नेक्स्ट 4-5 बिजनेस? आपने बताया कि जैसे ईवी चार्जर हो गया, सोलर हो गया, तो इन सेगमेंट्स में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? ईच ऑफ द सेगमेंट्स में क्या ग्रोथ? अगर आप देखें हमारी प्रेजेंटेशन, तो हमने सर उसमें ग्रोथ ड्राइवर दिए हैं। आप एक बार उसको अगर गो थ्रू कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। हमने उसमें डाला है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप बता सकते हो या? तो मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार हमारी स्लाइड नंबर 17 और 16 अगर आप पढ़ लें तो हमने उसमें सोलर इंडस्ट्री और ईवी इंडस्ट्री के बारे में पूरी बात लिखी है। ओके श्योर। ओके आई थिंक गेट दैट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Bhavya from AM Capital. Please go ahead. कॉल कर रही है। Yeah, hi sir, am I audible? जी बताएं। Sir, so we were in the middle of trades with Tata Motors अपने EV चार्जर्स के लिए, तो आप उसके स्टेटस के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे सकते हैं क्या? मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ आपका सवाल। सर हम लोग जैसे टाटा मोटर्स के साथ बात मतलब वी वर इन द मिडल ऑफ ट्रेड्स राइट विद टाटा मोटर्स जी। अपने EV चार्जर्स को लेके, तो कैन यू प्लीज शेयर द स्टेटस ऑन दैट कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या चल रहा है उसके साथ? सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक कोई ऑर्डर आपके हाथ में कंफर्म्ड नहीं आ जाता तब तक मैं उसको ऑर्डर नहीं मानता। मेरा एक मानना है कि किसी भी बिजनेसमैन को जीवन में 3 ही बार खुशी होती है। पहला जब उसको ऑर्डर मिलता है, दूसरा जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, और तीसरा जब उसको पैसे मिल जाते हैं। तो तीसरी जो खुशी होती है वो पहले 2 खुशियों को बर्बाद कर सकती है कभी भी। यानी कि आपने ऑर्डर ले लिया और माल सप्लाई कर दिया और आपको पैसे नहीं आए तो आपकी दोनों खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से ऑर्डर के अंदर भी 2-3 स्टेप्स हैं। आपका L1 होना, आपका एग्रीमेंट साइन होना, और आपके हाथ में परचेज ऑर्डर की कॉपी आना। तो तीसरा स्टेप जब तक नहीं हो जाता तब तक पहली 2 खुशियां कभी बर्बाद हो सकती हैं। तो इस पर मैं कुछ भी पब्लिकली बोलूंगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक बार कॉपी हमारे हाथ में आ जाए देन आई विल शेयर विद यू डेफिनेटली। सर और सर हम लोग कुछ सोलर पावर EV में चार्जिंग कारपोर्ट्स भी कर रहे थे राइट? जी बिल्कुल कर रहे हैं सर। हौज खास के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। आपको उसकी न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। हालांकि इसका एक सेट हमने शायद 1 महीने पहले रिलीज किया था पब्लिकली। ये दोबारा रिलीज होगा जिस दिन वो इनोग्रेट होगा। ठीक है, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट या फिर टेस्टिंग का क्या सीन है सर इसका भी? हम सब कुछ कर चुके हैं सर। हम तो इंस्टॉल कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के लिए, बट वहाँ पर कुछ उनकी क्लियरेंस वगैरह के इशूज़ हैं। MCD से, NDMC से, उनके अपने इशूज़ हैं। इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा धीरे चल रहा है, क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं सरकारी, तो वो सब क्लियरेंस करा के देना उनका काम है। तो जैसे ही हो जाएगा हम उसको ऑपरेशनल करेंगे, बाकायदा उसका इनोग्रेशन करवाएंगे, एंड वी विल डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन,
क्योंकि प्रोडक्ट हमारी तरफ से पूरी तरह टेस्टेड है, हमारी फैक्ट्री में चल रहा है, किसी भी दिन कोई भी आगे देख सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, Thank you. Before we take the next question, I would like to remind all participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. Congratulations sir for a great set of numbers. सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी आपने बताया कि वी आर प्लानिंग टू हैव अराउंड 300 करोड़ कैपेक्स, तो आप इसे फाइनेंस करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे फाइनेंस होगा, एंड आर यू प्लानिंग टू बेसिकली डाइल्यूट द शेयर्स ओके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग दिस, डू यू हैव एनी सच प्लान? सर इसमें ना 3-4 फेजेज में है ये इन्वेस्टमेंट। पहले फेज की इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं और हमने कुछ डेट लिया है बैंक से, और क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हमें मार्केट भी सपोर्ट कर रही है और सब कुछ कर रहा है, तो अभी डाइल्यूशन का इस स्टेज पे कोई मूड नहीं है। हो सकता है हम सितंबर ऑनवर्ड्स को छोटा मोटा डाइल्यूशन करें और समवन, बट कोई मेजर अभी डाइल्यूशन का कोई प्लान नहीं है। ओके सर, तो ये जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ज़्यादातर मतलब इंटरनल अप्रूवल से और इंटरनल अप्रूवल्स और डेट से कर रहे हैं। बिल्कुल, डेट से। तो सर ये डेट अब कैसे रहेगा, मतलब व्हाट डू यू प्लान टू सी हाउ द डेट एंड इक्विटी वुड लुक लाइक? नहीं समझा, डेट कैसे रहेगा मतलब दोबारा बोलेंगे प्लीज? मतलब कितना हम डेट बढ़ाना चाहेंगे, डेट इक्विटी रेशियो कैसे हो सकता है? सर हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो हमारी कोशिश यही है वो किसी भी हालत में 50-60% से ऊपर ना जाए ऑफ द टोटल इक्विटी प्लस रिजर्व का जो टोटल है, मान लीजिए 100 करोड़ है तो वो 50 करोड़ से ऊपर ना जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। ओके सर, और सर ये हमारे अभी अगर इफ आई सी द प्रेजेंटेशन तो हमारे 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ओके, एंड ईवी इज वन ऑफ देम, बट वी सी दैट दैट वुड ग्रो सब्सटेंशियली, तो ये मार्जिन में क्या इम्पैक्ट आएगा? और सर जो दूसरे वर्टिकल्स है लाइक से एलईडी, स्टेबलाइजर, पावर बैकअप, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा? आई मीन आर वी स्टिल प्लानिंग टू कंटिन्यू ऑन दैट बिजनेस और हाउ डज इट गोइंग टू चेंज? मैं इसमें 2 ही बातें कहूँगा आपको। पहला ये कि मार्जिन का जो इम्पैक्ट की आप मुझसे बात कर रहे हैं उसके लिए आप 3 साल का डेटा देख लें, आपको आप समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है। जीपी इंप्रूव हो रहा है, एबिटा इंप्रूव हो रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब जो आपका सवाल है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप ही कि क्या हो रहा है, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि एलईडी के क्या हिस्सेदारी है या और चीज़ों की क्या हिस्सेदारी है, इसको भी आप ध्यान से अगर समझेंगे तो हम लोग उनमें भी निश प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर हमें एलईडी के प्रोडक्ट करने होते तो हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी मार्केट में रिटेल सेगमेंट में नहीं आए जहाँ पर आप कमोडिटी आइटम्स के अंदर डील करते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, इस तरीके के काम कभी नहीं किए। हम पहले भी जो काम करते थे वो फ्लेम प्रूफ लाइट्स बना रहे हैं, पेट्रोलियम के लिए लाइट बना रहे हैं। मतलब हमारी जो आप कह सकते हैं जो शॉर्ट लेंसेज अगर आप हमारा देखा तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम निश मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं हमेशा से। तो जिस टाइम एलईडी के पैनल्स मार्केट में 1500 रुपये के बिकते थे, हम तब भी 4000 का बेचते थे, और वो इसलिए बेचते थे क्योंकि हम पैसो सर्टिफाइड थे और हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बेचते थे, राइट? और जब हम लाइट्स बेचते थे तो हम फ्लेम प्रूफ लाइट बेचते थे। आज भी इसी तरीके के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं हम। तो एलईडी में भी हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एलईडी की बात करें तो सोलर एलईडी सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं आजकल, तो वो उसमें मार्जिन है, तो हमें मार्जिन वाले काम करने हैं और ऐसी चीज़ें करनी है जो आम कंपनीज करने से घबराती हैं, ताकि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ कम्युनिटी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ओके, और सर ये जो हमारा ईवी का बिजनेस है उसमें टेक्निकल रेजिस्टेंस कितना है? अगर न्यू प्लेयर को, अगर कोई बड़ा न्यू प्लेयर एंटर करना चाहे, ओके, स्पेशली द कमर्शियल प्लेयर्स लाइक टाटा और एनीवन, ओके, तो ये कितना डिफिकल्ट है मार्केट क्रैक करना? और हाउ मच लीड टाइम दे हैव, ओके, लाइक बिफोर दे कैन सब्सटेंशियली इम्पैक्ट दिस मार्केट? सर ऐसा है, आपको एक बात ध्यान से समझें, सारी चीज़ें सिर्फ पैसे से या आपकी जो है फाइनेंशियल मसल से नहीं होती है, राइट?
अगर ऐसा होता तो आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें कि क्या मारुति छोटी कंपनी है, क्या टाटा छोटी कंपनी है, क्या मर्सिडीज छोटी कंपनी है, क्या BMW छोटी कंपनी है? नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी भी कंपनी ने टायर्स अपने नहीं बनाए। ध्यान से आप देखिए, करेक्ट। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आज भी टाटा जो गाड़ियां बेच रही है, MG जो गाड़ियां बेच रही है, चार्जर्स उनके नहीं आते हैं, चार्जर थर्ड पार्टी है। तो टाटा पावर टाटा मोटर्स के लिए चार्जर इंस्टॉल करती है, वो वर्टिकल इन्होंने अपने पास नहीं रखा। और हमने भी जब इस सबको एनालिसिस कर लिया तब हमने इस मार्केट में एंट्री ली है, क्योंकि घुसना बड़ा आसान होता है, अपने आप को वहां पर सस्टेन करना और ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। हम लिथियम बैटरीज के उस सेगमेंट में बिल्कुल नहीं गए जिस सेगमेंट के अंदर हमें मालूम है कि टाटा भी अपनी फैक्ट्री लेके आ रहा है और रिलायंस भी अपनी फैक्ट्री लेके आ रहा है और अडानी भी लेके आ रहा है। हमने वो सेगमेंट चुना है जिस सेगमेंट में वो कभी नहीं आएंगे, यानी कि सोलर के प्रोडक्ट्स या EV के लिए जो हम बैटरी बैंक बनाएंगे उसके लिए, उसमें उनका कोई इरादा नहीं है। वो बना रहे हैं व्हीकल्स की बैटरियां, हाई एंड बैटरीज, जिसमें उनका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हम आपको ये ढूंढना है कि आप कौन सी जगह पर रह के काम कर सकते हैं जहां पर आपका कंपटीशन मिनिमम हो जाए, यानी कि आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर का ऑब्जेक्शन ना हो और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जीत जाएंगे, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, ग्रेट सर। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि हम जो ये कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं और हमारा जो कैपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कैसे रैंप अप होगा और कब हम लोग रेडी हो जाएंगे? द नंबर दैट वी आर कोटिंग, ओके, दैट वी वांट टू डू 6 लाख, ओके, EV चार्जर। 6 लाख चार्जर मैं नहीं समझा। 6 लाख चार्जर की बात तो हमने कहीं नहीं की है सर, मेरे ख्याल से। सॉरी, यू मेंशनड यू वांट टू एक्सपांड, आई थिंक इट वाज, मे बी आई पिक्ड अप समथिंग मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ। अभी हम जहाँ खड़े हैं, आज हम जहाँ खड़े हैं, करेक्ट, लास्ट ईयर के टर्नओवर से 2.5x करने के लिए हम अभी से कैपेबल हैं आज। और हम अभी जो नई फैक्ट्री और जो नए प्लान कर रहे हैं वो हम 2024-25 और 2025-26 के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, thank you sir, I'll get back into the queue. Thank you. Thank you. Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Ashok Agarwal, an individual investor. Please go ahead. Thank you for giving chance again. रमन जी, हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम we are the 4th largest supplier of EV chargers in India, maybe 3rd or 4th. तो हम हमारा कंपटीशन मेन जो हमसे आगे हैं, कैन वी नेम फ्यू ऑफ देम फॉर आवर नॉलेज? सर मुझे ना सर्वोटेक की ये गद्दी अलाउ नहीं करती कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करूं या उनके नाम दूं आपको, लॉजिकली ठीक बनता नहीं है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मैं टॉप जो भी 2-3 कंपनीज होंगी, मुझे नहीं पता वो कौन होगी, लेकिन उसमें से एक हम जरूर होंगे, इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. We have the next question again from the line of Mr. Ashok Agarwal, an individual investor. Please go ahead. रमन जी, मैं पूछना चाहता था कि हम मतलब मार्जिन कैसे इम्प्रूव करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट ईयर के मुकाबले में मार्जिन इस साल हम ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मार्जिन को कैसे ग्रो करेंगे? थोड़ा मार्जिन भी बढ़ना चाहिए मतलब। सर मेरे को ऐसा लगता है फिर अपने ना फाइनेंशियल्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है, आई थिंक। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो आप ये देखें सर कि जो लास्ट ईयर के प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, राइट, उन प्रॉफिटेबिलिटीज में 11 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया गया है बैड डेप्ट का। अच्छा, अगर उसको प्रोविजन को हटा दें 1 मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी 250 करोड़ रुपए के ऊपर 25 करोड़ आ गई। अच्छा,
तो सर नहीं उस पर ध्यान नहीं गया हमारा, मतलब तो मेरा फर्ज है, मैं इस कॉल पे हूँ इसलिए ना कि जिससे मेरा इन्वेस्टर नहीं देख पा रहा है उसको मैं बताऊं कि आप क्या देखो। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि हमने पिछले 2, 4, 5 सालों में या 7 सालों में जो कुछ भी अकोमुलेट किया था और जो नजर आ रहा था कि इसमें अभी इश्यूज हैं, हम उसको बुक्स में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा एक और चीज़ है सर, हमने वारंटी की प्रोविजनिंग भी करनी शुरू कर दी है। आप देखेंगे तो 3 से 4 करोड़ रुपए की वारंटी की प्रोविजनिंग है, यानी कि अगले 3 सालों में जो भी हमने पिछले साल में गुड्स बेचे हैं उनकी वारंटी की जो कॉस्ट आएगी वो भी प्रोविजनिंग से एडजस्ट होगी। अच्छा, तो यानी कि उसका भी साइड इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट से नहीं आने वाला। अच्छा, तो लास्ट ईयर के अंदर अगर हमने पीबीटी 14 करोड़ से ऊपर दिखाया है तो 14 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग है। दैट मीन्स 250 करोड़ रुपए के धंधे में 28 करोड़ का पीबीटी बन जाना चाहिए टेक्निकली। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये इसके लिए शाबाशी के हकदार तो हमारी कंपनी और हमारी टीम है कि हम इसको पिछले 3 सालों में टर्न अराउंड किया हमने। और एक और चीज़ आपको बता दूं, और वो ये बता दूं कि हमारी कंपनी में क्रेडिटर्स साइड लगभग 0 है। हम क्रेडिटर्स से उधार माल नहीं खरीदते, हमारे यहाँ कोई पेमेंट टर्म्स नहीं है। अच्छा, और डेप्टर्स का रिस्पांस कैसा है? डेटर्स हमारे किसी जमाने में 212 दिन के हुआ करते थे, अभी वो घटते हुए करीब करीब 60-70 दिन पे आ गए हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो जिस तरीके से देखते हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो डेज फ्रॉम द मतलब डेज की कैलकुलेशन करते हैं टोटल टर्नओवर से, जबकि हमने आपको बताया, शायद आपने सुना होगा कि हमारी लास्ट क्वार्टर की टर्नओवर जो थी वो 115 करोड़ थी या 119 करोड़ थी इन टोटल, अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट। और हमारे डेटर थे 82 करोड़ के या 78 करोड़ के, आई थिंक ऐसे कुछ था, है ना, 82 के ऐसे में। तो करीब 80-82 करोड़ के हमारे डेटर थे। तो अगर आप देखें उस तरीके से तो 60 दिन के भी नहीं होते। लेकिन अगर आप 250 करोड़ की टर्नओवर से उसको डिवाइड बाय 365 डेज करके निकालेंगे तो वो डेटर्स आपको ज़्यादा दिन के दिखेंगे। नहीं, मतलब बहुत रीजनेबल है, 40-50 डेज, अप टू 3 मंथ्स भी आए तो भी काफी रीजनेबल है। मतलब आपके कई क्लाइंट्स आपके गवर्नमेंट सेक्टर के भी होंगे, मतलब मे बी मेनी क्लाइंट्स में भी। सर गवर्नमेंट सेक्टर के ही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में तो हम उधार ही नहीं करते सर। अच्छा जी, Mr. Agarwal, does that answer your question? Yes. Thank you. This is a reminder to all participants connected to this conference. If you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. On behalf of Servotech Power System Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining. You may please disconnect your lines now. Thank you.